Respected patron, convener, co-convener of Intech Purnia chapter, honorable chairperson and speaker, other panelists, guests, students, other audiences and support staffs. A very good evening to you all. I welcome you all to evening's discussion on heritage conservation with a special reference to Purnia, organized by Intech Purnia chapter. The present discourse becomes more relevant in the light of recent incident of demolition of Dr. Pikachi's house. We know living in harmony with heritage enhances the quality of life, and it is the duty of every citizen of India to protect and conserve all types of heritage as laid down in the Constitution of India. First of all, I would like to introduce Intech and its Purnia chapter. Intech stands for Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. Its main mission is to conserve heritage. Since its inception in 1984, Intech has developed into a highly competent and efficient organization concerning built, natural and intangible heritage in India. The organization has become an important advisor to different levels of Indian government, international agencies like UNESCO, and also the corporate and public sectors on matters pertaining to protection, conservation and preservation of heritage. Its chapter across the country has played indispensable role in achieving its goal and forms the backbone of this esteemed organization. Intech Purnia chapter, as the name suggests, is located in the cosmopolitan and historically rich city of Purnia, which forms the part of Great Kosi Mahananda Ganga river basins. The area is quite rich in different types of heritage. Intech Purnia chapter was founded in March 2020. Later on, once I finish my presentation, there is a PPT also. Down the memory lane, we will see some photographs of inaugural functions also. Rahul sir will help us in doing so. Intech Purnia chapter is dedicated to creating awareness about heritage, listing and protection of heritage, developing community-based knowledge, fighting for public causes against encroachments and destruction, and writing and publishing materials about the history and culture of Purnia and neighboring region etc. The chapter is blessed to have distinguished mentor and member Ramesh sir, who is a continuous source of leadership, guidance and inspiration. Another very important member and one of the brain behind the formation of Intech Purnia chapter is Professor Ratneshwar Mishra sir, a leading and venerable historian and a multifaceted scholar. We are fortunate to have Mr. Rajesh Chand Mishra sir as the convener of Intech Purnia chapter. He is the leading beacon of light for the organization. Sir has deep interest and understanding of history, culture and heritage. An industrious man, in spite of having many responsibilities simultaneously, deeply involves himself in chapter's affair and mission. Mr. Amit Kumar Jha is the co-convener of the chapter, who is always prompt and forthcoming whenever we need him. Dr. Manindra, faculty JNU and is a leading political scientist and a scholar who continuously blesses us with his valuable advices. Thank you very much, sir, to all of you. Now I would like to present the highlights of today's program. To evening, we have Dr. Shiv Kumar Mishra as our keynote speaker, Dr. Ratneshwar Mishra as chairperson, and eminent panelists, namely Mr. Rajesh Chand Mishra, Mr. Amit Kumar Jha, and Dr. Manindra. First, the lead speaker of the day will talk on heritage conservation with a special reference to Purnia. It will be followed by a short question-answer session for almost 20 minutes. Then, other honorable panelists can share their opinion. Thereafter, the chair of the day, Professor Ratneshwar sir, will enlighten us. The program will end up with a speech and vote of thanks from Rajesh sir, the convener of Intech Purnia chapter. The lead speaker will have 30 minutes and other panelists will have 5 minutes in their hand. There will be a buzzer sound 2 minutes before the allotted duration as an indication to finish the talk. Now I would like to introduce our keynote speaker of the evening, Dr. Shiv Kumar Mishra. Dr. Mishra is a leading museologist
and heritage conservationist in Bihar. He is a multifaceted personality combining the skills of museography, archaeology, conservation, writer, and literature. Sir has written several books pertaining to ancient and medieval India and produced dozens of research papers on cultural heritage. He is the editor of reputed journals and members of several professional academic bodies. Presently, Dr. Shiv Kumar Misra is serving as the curator of Maharaja Lakshmeshwar Singh Museum, Darbhanga, and Betia Museum. He is also leading research and publication division of Patna Museum and Gandhi Smarak Museum. Now, I would request Rajesh sir, the convener of Intech Purnia chapter, to welcome our keynote speaker, Dr. Shiv Kumar Misra. You have already introduced what kind of figure Dr. Shiv Kumar Misra ji is. We are very fortunate to have him amongst our students, amongst our staff members, they will be enlightened with his talk. I have already taken the privilege of going through the presentation, and I am very sure that, and I have been a witness to his past presentation at the Law College, Purnia, and I am very excited. Thank you, sir. We welcome you. Now, with all humility, I request Chair Dr. Ratneshwar sir to take over and guide the event. Thank you, sir, and thank you, everybody. मैं शिव कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि वो कंजर्वेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन पर अपने विचार रखें और उसमें पुण्य की बातें कहें। पुण्य की बातें तो अगर छूट पड़ जाएंगी तो मैं कुछ बोल दूंगा, आप कहें। अध्यक्ष महोदय, चैप्टर के संयोजक एवं सदस्यगण और इस वेबिनार में भाग लेने वाले जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सब लोगों से मैं सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं सबसे पहले। और पूर्णिया चैप्टर आज ये कार्यक्रम कर रही है धरोहर संरक्षण के लिए, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं लोगों को। हालांकि एक साल में कोरोना के चलते हम लोग जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया, फिर भी जहां तक पूर्णिया के धरोहर संरक्षण की बात है, सर बैठे हुए हैं तो मैं इसके बारे में अधिक से अधिक नहीं जान सकता हूं, न बोल सकता हूं, न जानकारी है। फिर भी आदेश है तो कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा। खास करके पुरातत्व के क्षेत्र में धरोहर का डिफिनीशन तो विशाल है और सांस्कृतिक धरोहर के दृष्टि से पूर्णिया बहुत ज़्यादा समृद्ध रही है। इस पर बोलना 1-2 घंटे की चीज़ नहीं है। 2-4 दिन लगातार अगर बोला जाए और अधिक से अधिक लोग अगर अनेक जो उसका जो आयाम है धरोहर की सभी पर अगर बात करें तभी हो सकती है और संभव हो सकता है। फिर भी कुछ बातें मैं रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो इंडिया को करना चाहिए उस पर मैं आऊँगा कि धरोहर संरक्षण के लिए हम लोगों को आम लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना पड़ेगा। आम लोगों को, बुद्धिजीवियों को, सरकारी अधिकारियों को, पत्रकार को, सारे लोगों को पहले धरोहर के बारे में जानकारी देना पड़ेगा और उसके संरक्षण के बारे में उन लोगों को जब तक जागरूक नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। इस दिशा में हम लोग जो कुछ काम कर रहे हैं वो सुखद है। अब मैं कुछ बातें रखूंगा जो पूर्णिया के संबंध में, धरोहर के संबंध में, जो आम लोगों को क्यों जगाना जरूरी है, हम लोगों को अपने धरोहर संरक्षण के लिए मुझे क्यों आगे आना पड़ेगा, हम लोगों को क्यों आगे आना पड़ रहा है,
इन सब बातों पर विचार करने के लिए मैं कुछ बात अपना रखना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अभी धरोहर जो ये है, हेरिटेज बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। हेरिटेज बिल्डिंग तब उसकी रक्षा हो सकती है जब हम लोग जागरूक हों। सरकारी नियम तो ये है कि 1 साल का होना चाहिए, ऐतिहासिक महत्व का होना चाहिए, सांस्कृतिक महत्व का होना चाहिए, 100 वर्ष का होना जरूरी है उसमें। लेकिन उसके साथ ये भी है, सरकार द्वारा अधिसूचित होना चाहिए, तभी आप उसके लिए कोई लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी पिकाची हाउस की बात हम लोगों ने की, सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं है, सरकार रक्षा नहीं करेगी, हम लोग भी उसके लिए मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं है। सरकार द्वारा अधिसूचित केवल पूर्णिया में एक बिल्डिंग है, उसका संरक्षण क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं, जो जलालगढ़ का है। पिछले साल जो हम लोग गए थे सर के साथ, डीएम साहब से कहने के उस पर कम से कम जंगल कटवा दीजिए, तो वो कहते हैं मुकदमा चल रहा है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो बिहार सरकार का वो संरक्षित भवन है, बाकी कहीं नहीं है। दूसरी है भारत सरकार का संरक्षित स्थल। भारत सरकार के संरक्षित स्थल में दरभंगा से लेकर और कटिहार तक केवल बलिराजगढ़ मधुबनी जिला का 1938 ईस्वी में जोड़ा गया। उसके बाद किसी भी पूरा स्थल का नाम नहीं जोड़ा गया है संरक्षित स्थल में, संरक्षित स्मारकों की सूची में। तो वो क्यों इसमें ध्यान दे, सरकार क्यों ध्यान देगी? भारत सरकार जी, तो ये भारत सरकार की संस्था और बिहार सरकार की संस्था द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में पूर्णिया का एकमात्र है जलालगढ़। बाकी हेरिटेज बिल्डिंग जो है उसकी सूची में नहीं है, इसलिए हम लोगों को खुद उसको तय करना पड़ेगा। और इंटेक चैप्टर से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी 100 साल से पुराने भवन हो या जिसका ऐतिहासिक महत्व हो, सांस्कृतिक महत्व हो, उसका एक सूची बनाए हम लोग और उस पर हम लोग काम करें, लोगों को उसके प्रति जागरूक करें कि उसकी रक्षा करें। अब भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं या बिहार सरकार की, वो क्यों नहीं ध्यान देती है हम लोग की तरफ, उस पर 1 मिनट में मैं कहना चाहता हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे बड़ी संस्था है देश की, जो कि धरोहर की संरक्षण करती है। उसके डीजी एक बार आते हैं और बिहार के पुरातत्व पर जब भाषण करने लगते हैं पटना में, तो गंगा के उत्तर में केवल वो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर बाढ़ का फोटो दिखा देते हैं और कहते हैं गंगा के उत्तर कुछ नहीं है, सब कुछ दह गया। तो आखिर गंगा के उत्तर जब कुछ है ही नहीं तो फिर वो क्यों इंटरेस्ट लें? इसी तरह उनके ही तरह अगर वो भारत सरकार के एजेंसी के विद्वान हैं, फिर अगर बाहर के भी लोग आते हैं। अब एक हम लोग 1984 में किताब देखे हैं, छपी हुई है सुसान हटिंगटन की। उन्होंने मूर्तियों का अध्ययन करने के, पाल सेन आर्ट पर काम करने के लिए आई, तो गंगा के उत्तर में वो कहते एक भी मूर्ति नहीं है, जबकि 1923 ईस्वी में अंजराठाड़ी इंस्क्रिप्शन को केपी जायसवाल द्वारा प्रकाशित कर दी गई थी। इसमें विष्णु मूर्ति में अभिलेख था। फिर बेगूसराय का म्यूजियम स्थापित हो चुका था बहुत पहले राधाओं के द्वारा। फिर दरभंगा की म्यूजियम भी थी। 1962-63 में बाड़ीजानगढ़ से सूर्य की मूर्ति भी मिल चुकी थी, लेकिन सीधे कह दिए उत्तर में कुछ नहीं। उसके बाद भी कुछ किताबें छपी है, बिहार की प्राचीन हिंदू प्रतिमाएं, ये है डॉक्टर पुष्पा सिन्हा की, एक हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपी हुई है। एक प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान है, ये है डॉक्टर नील पुरुषोत्तम जोशी की। एक है भारतीय कला का तो बिहार की देन, डॉक्टर बीपी सिन्हा साहब का है। ये सब बहुत मूर्तियों का जिक्र किए हैं, 100-150 मूर्तियों का इसमें जिक्र किए हैं। गंगा के उत्तर में एक भी मूर्तियों का इन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो उन लोगों का गंगा से उत्तर के मूर्तियों या धरोहर के प्रति कितना प्रेम है, इससे पता चल रहा है। अब वो अगर नहीं करते हैं, फिर भी अभी तक जो हमारे सामने है, पूर्णिया का मैं कुछ साइट का मैं नाम लेना चाह रहा हूं।
बिहार सरकार के 36 में केवल एक है, और बिहार में पूरे बिहार में बिहार सरकार की 36 संरक्षित स्मारकों की सूची है, उसमें मात्र एक है जलालगढ़। और भारत सरकार के बिहार में 101 है, जिसमें पूर्णिया के एक भी नहीं है। पूरा दरभंगा, कोसी और पूर्णिया कमिश्नरी में एक मात्र है। फिर भी उससे आगे, लेकिन पूर्णिया में जब हमारे पास जो लिस्ट है उसमें कुछ साइट का मैं नाम बता रहा हूँ। असुरगढ़ है, बाघनगर, बहादुरगंज, बनैली, बड़ीजनगढ़, बेनीगढ़, छोटा पहाड़, इकरा किशनगंज में है। बहुत सामग्रियाँ वहाँ मिली है। गणेश की, उमा महेश्वर की मूर्ति है, बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। कुछ मूर्तियों को जिलाधिकारी ने अपने कब्जा में रखा 25 साल पहले, लेकिन वो कहाँ रखे, अभी हम कुछ दिन पहले बात किए थे, उनको कुछ पता नहीं था। फिर गंगा सागर एवं जीवज है, वहाँ पाल मूर्तियाँ मिली है। गोरोडी है, बौद्ध स्तूप है, जलालगढ़ का नाम मैंने ले लिया है। कन्हैया जी का विष्णु की 11th सेंचुरी की मूर्ति है। किशनगंज में मूर्ति मिली है। महेंद्रपुर में है, पाल की मूर्तियाँ हैं। समदा दहार है। रसाड़ के बारे में सर ने कहा था कि वहाँ मूर्ति मिली है। श्रीनगर में है, सुरसंड है, पुराना मस्जिद, और सब ठाकुरगंज में है, सिसिया में है। इसमें जितनी भी जगह हैं उसमें अधिकतर पूर्व मध्यकालीन और मध्यकालीन सामग्रियां मिल रही हैं। अब बिहार सरकार के पुरातत्व निदेशालय द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया था पिछले साल। बनमनखी प्रखंड में 27 पुरास्थल की पहचान की गई। उसमें एक सिकलीगढ़ है, जिस यहाँ पर प्रहलाद स्तंभ की बात करते हैं। उसके बारे में उन लोगों सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि इसका उत्खनन कराया जाए। उत्खनन से पहले अधिकारी ने कहा, यहाँ के प्रधान सचिव ने कहा, नहीं पहले संरक्षित सूची में इसका नाम डालिए। उसके लिए डीएम से रिपोर्ट मांगिए। जिलाधिकारी महोदय से मांगा गया रिपोर्ट आई नहीं। न रिपोर्ट आई, न संरक्षित सूची में नाम गया, न उत्खनन हुआ। उसके बाद मधुबन है, हरमुरही है, बथनाहा, चैनपुरा, रजवाडीह, महाराजगंज पंचायत में, इकराहा, रुपौली, हटिया टोली, रुपौली, शिलानाथ, महाराजगंज, लदुहागढ़, खनमा बैहर, मखनाहा, बद्रीनगर, बुढ़िया, धनकट्ठा में 3 साइट है। कचहरी, बलुआ, बहोड़ा, कोरियाडीह, देवोत्तर बड़ियाही, धीमा धीमेश्वर स्थान, दुर्गा स्थान काजी, सुखियाडीह, सिकिठिया मल्लीडीह। इस तरह 27 जो यहाँ पर मिले हैं, ये पुरास्थल की पहचान उन्होंने किया है। अभी इन पुरास्थलों का उत्खनन तो नहीं, कम से कम संरक्षण हो। संरक्षण सरकार अगर नहीं करती है तो हमारे समाज के लोग, गांव के लोगों से हम लोग संपर्क करें कि ये जो टीले हैं इनको वो लोग नष्ट नहीं करें। इसके अंदर में हमारी संस्कृति छिपी हुई है, इसके लिए आम लोगों को बताना पड़ेगा। और ये सिकलीगढ़ का जो है, वहाँ पर जो अभी तक मिल चुका है, प्रहलाद स्तंभ की जो बात कर रहे हैं हम लोग, अशोक का पिलर कहा जाता है। और अभी तक जो वहाँ पर बर्तन के टुकड़े मिले हैं, कुषाण पीरियड के समय के मिल चुके हैं। और एक बौद्ध स्तूप भी पाल काल का मिला है वहाँ। तो इस तरह से पूर्णिया के जो इतने पुरास्थल का जो हमने जिक्र किया है, इसके बाद भी अगर बाहर के लोग कहेंगे जो गंगा के कोसी की धार में उत्तर बिहार की सारे पुरास्थल दह गए, तब तो फिर कहना मुश्किल है। उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ बातें रखा ये पुरातात्विक धरोहर के बारे में, पुरास्थलों के बारे में। अब हम आते हैं हेरिटेज बिल्डिंग। हेरिटेज बिल्डिंग में पिकाची हाउस के बारे में ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, सर ज़्यादा जानते हैं। लेकिन उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि वो हेरिटेज बिल्डिंग सरकार द्वारा घोषित नहीं थी, तो हम लोग घोषित कर सकते थे। जो अधिकारी उसके रक्षक थे उनको समझना चाहिए कि ये हेरिटेज बिल्डिंग है, उसको हमें रक्षा करना है। उसके साथ साथ अनेक ही हेरिटेज बिल्डिंग उस क्षेत्र में है। पुराने चीनी मिल होंगे, जूट मिल के होंगे, चावल मिल के होंगे, या नील कोठियाँ होगी। 19वीं सदी के में करीब 100 के आसपास नील कोठियाँ वहाँ थी। एक आध बची होगी, लगता है वो उसमें अधिकतर ध्वस्त हो गया होगा। लेकिन अगर कुछ बची हुई है तो उसका भी लिस्टिंग हम लोग करा लें, डॉक्यूमेंटेशन करा लें तो अच्छा हो सकता है। मैंने बेतिया में, चंपारण में नील कोठियों का डॉक्यूमेंटेशन
किया है। मैं खुद गांव-गांव जाके उसका डॉक्यूमेंटेशन किया। जो बचे हुए हैं 72 कोठियां कहा जाता है, किताब में पढ़े 72 कोठियां है, लेकिन अभी हम लोग जब गए हैं तो अनेक कोठियां नष्ट हो चुकी है। जो बची हैं उसका हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है और अपने गांधी संग्रहालय में उसका फोटोग्राफ्स भी लगाया है। उसका पब्लिकेशन की प्रक्रिया में हम लोग हैं। तो ये पूर्णिया में भी हो सकता है, क्योंकि चंपारण से ज़्यादा नील कोठियाँ वहाँ थी। अगर कहीं बची हुई है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे। अब आते हैं, एक है हमारी मिथिला की पंजी जो है, ये हमारा धरोहर है। इसमें पूर्णिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम लोग कहानी सुनते होंगे, कर्नाट वंशी राजा हरिसिंह देव के समय में ये सुदृढ़ की गई थी। 1324 ईस्वी में उनका समय अंतिम होता है, उससे पहले ही हुआ होगा। पढ़वे मूल के गुणाकर उपाध्याय को उन्होंने सबसे पहले दिया था पंजी को निर्माण करने के लिए, मैथिल ब्राह्मणों की पंजी को निर्माण करने के लिए। उनके वंशज ही आपके पूर्णिया में जो मोदानंद झा, विद्यानंद झा वगैरह हैं, ये लोग पूर्णिया में हैं। और कहा जाता है कि ये सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया था हरिसिंह देव के द्वारा। तो वो जो आपके यहाँ पंजी है वो बहुत बड़ा धरोहर है आपका, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। ये धरोहर इसलिए भी है कि इतना बड़ा रिकॉर्ड कहीं भी नहीं होगा, नहीं। हालांकि विद्यानंद झा ने उसका जीनोम मैपिंग करके एक पब्लिकेशन उन्होंने कराया है, उसका टाइप करवा के, लेकिन वो जो ओरिजिनल जो तालपत्र की जो है सामग्रियाँ, उसका संरक्षण होना जरूरी है, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। अभी हम लोग इंटैक दरभंगा चैप्टर के द्वारा ननौर के पंजीकार हैं, उनके यहाँ कराने जा रहे हैं। इंटैक की टीम लखनऊ से आ रही है ये अगस्त के प्रथम सप्ताह में, और हम लोग जाके वहाँ सबसे पहले वहाँ के जो पंजी है उसका हम लोग संरक्षण करवाएंगे। हालांकि बाहर के लोग पंजी का महत्व उतना नहीं जानते हैं। ज़्यादातर प्रयास है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो पांडुलिपियाँ हैं उसका संरक्षण हो, मिथिला शोध संस्थान की जो पांडुलिपियाँ हैं उसका संरक्षण हो, लेकिन जो कस्टोडियन है वो नहीं चाहते हैं कि संरक्षण हो। इंटैक पैसा लेके बैठी हुई है संरक्षण कराने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं। बिहार चैप्टर के जो कन्वीनर प्रेम शरण साहब हैं, उन्होंने प्रधान सचिव शिक्षा विभाग से भी रिक्वेस्ट किया था, परमिशन दीजिए, हम उसका करेंगे, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो हम लोग फिर पंजी को कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद फिर लिपि के लिए भी आपके क्षेत्र में जो लिपि रही है, जो जैसे कि बुकानन ने कहा कि 3-4 लिपि आपके यहाँ चल रही थी, मिथिलाक्षर, अरबी फारसी, बांग्ला। तो बांग्ला तो बची हुई है, मिथिलाक्षर, अरबी फारसी और कई थी। ये सब इन लोगों का भी, इस सब का भी संरक्षण करना जरूरी है। उसके बाद जो बिल्डिंग की बात हमने धरोहर भवन की बात किया है, तो गांधी सर्किट से भी जुड़ना चाहिए था उस क्षेत्र के, क्योंकि गांधी जी कई बार वहाँ गए हैं। 1925 में गए हैं, 1934 में गए हैं, 1925 में कुमार गंगानंद सिंह के यहाँ रुके हुए थे। उनका घर बचा हुआ है कि नहीं, उनको लगता नहीं है बचा हुआ है। अगर रहता तो उसको संरक्षित स्मारक घोषित करना चाहिए, गांधी सर्किट से जोड़ना चाहिए था। फिर वो उसके बाद 1934 में गए हैं, गोकुल कृष्ण राय के घर पर गए हैं, वो बची हुई है कि नहीं पता नहीं। फिर उसके बाद फिर कटिहार, किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज, टीकापट्टी, सब जगह गए हैं गांधी जी। तो अगर गांधी सर्किट से अगर जोड़ा जाता है चंपारण के कुछ साइट का, तो पूर्णिया के कुछ साइट को भी जोड़ना चाहिए था, और वहाँ भी डेवलप करना चाहिए पर्यटक स्थल के रूप में। तो धरोहर को अगर हम लोग ये विस्तार देते हैं तो पर्यटक स्थल बनेगा, उससे क्षेत्र को लाभ हो सकता है। हमने अभी चर्चा किया कि कुछ विद्वान लोग जो थे सो पूर्णिया या उत्तर बिहार को जगह नहीं दिए हैं, लेकिन एक किताब है, आप लोग भी कुछ लोग देखे होंगे, जयंती स्मारक ग्रंथ। बहुत मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब मैंने नहीं देखा था। 150 पेज की वो किताब है। उसको जब आप उल्टाएंगे तो लगेगा कि पूर्णिया का सांस्कृतिक धरोहर कितनी समृद्ध थी, और लगता है सांस्कृतिक राजधानी तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूर्णिया सांस्कृतिक राजधानी रही होगी।
अब वहाँ पर अगर देखते हैं जो कुछ जो बरेली स्टेट के जो राजा लोग थे वो लोग खुद विद्वान थे ही और विद्वानों के आश्रयदाता थे। इसमें एक पर एक ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत नाम किए हैं। अब कुछ लोगों का हम नाम ले लेते हैं जो विद्वान का है शॉर्ट में। वेदानंद सिंह थे, कृत्यानंद सिंह का चंपारण आंदोलन में भी वो कमेटी जांच समिति में उनका नाम था। कमलानंद सिंह साहित्य सरोज थे, साहित्यकारों का बहुत बड़ा जमावड़ा दरबार लगता था उनके यहाँ। श्यामानंद सिंह साहित्य और संगीत के बहुत बड़े अनुयायी थे। इसी तरह कुमार गंगानंद सिंह उनके दरबार में नौकरी करते थे। कृत्यानंद सिंह के यहाँ पंडित जनार्दन झा जनसीदन 1900 ईस्वी से बहुत बड़े विद्वान थे। उसके बाद रघुवीर नारायण का आप लोग नाम जानते हुए प्राइवेट सेक्रेटरी थे। उन्होंने एक गीत बनाया था, सुंदर सुभूमि भैया भारत तक देशवा से, मोहे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। बटोहिया गीत बहुत फेमस हुआ था और राष्ट्रगान की तरह गाया जाता था। ये रघुवीर नारायण चंपारण ये वहाँ सिवान और छपरा के रहने वाले थे, लेकिन वो आपके यहाँ प्राइवेट सेक्रेटरी थे और कर्मभूमि आपके पूर्णिया में था। एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर सत्यनारायण सहाय, वो भी कृत्यानंद सिंह के डॉक्टर थे, बहुत बड़े होम्योपैथ के डॉक्टर थे। वो छपरा के रहने वाले थे, बहुत बड़ा जस था उस क्षेत्र में उनका। इस तरह से अनेक विद्वानों का वहाँ पर उनके दरबारियों का नाम आता है। कुछ का हमने नाम लिखा है, बता रहा हूँ। जो हम उस जयंती स्मारक ग्रंथ में कुछ विद्वानों का नाम देखा है, उसका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इन सब पर भी अनुसंधान होना चाहिए। और अगर पूर्णिया के विद्वानों की या पांडित्य परंपरा पर अगर अलग शोध ग्रंथ हो तो बहुत मोटी ग्रंथ होगी, तो उन लोगों का उस पर अलग से रिसर्च होने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के लोग अगर उसमें अभिरुचि लें, मनेंद्र सर अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। सोनभद्र मिश्र, बाबू प्रिय मिश्र, भृगुराम मिश्र, वैयाकरण गेनालाल मिश्र, मनभरन झा, नैयायिक अपूछ झा, मुकुंद झा, शिवानंद चौधरी, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, लक्ष्मी नारायण सिंह सुधांश, अनूप लाल मंडल, देवानंद कुमार, बाबूलाल लालचंद्र सिंह, जय गोविंद जी के अलावे बहुत सारे नाम हैं। पुण्यानंद झा हैं जो पूर्णिया समाचार के संपादक थे। संत मेहीदास हैं, नित्यानंद सिंह, सूर्यनारायण चौधरी, कुमार अच्युतानंद सिंह, असरफी लाल वर्मा, दिनेश दत्त झा, बहुत बड़ा लिस्ट है। और वहाँ से विद्वान लोग रहते थे, इसलिए अखबार भी निकलती ही थी। पूर्णिया दर्पण, राष्ट्र संदेश, ये सब वहाँ निकली थी। बाद में भी हम लोग देखते हैं बहुत विद्वान हुए हैं वहाँ। ब्रजमोहन ठाकुर का मैथिली में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। प्रोफेसर जेसी झा बहुत बड़े विद्वान थे, इतिहासकार थे। प्रोफेसर मदनेश्वर मिश्र साहब का बहुत बड़े विद्वान थे। ये लोग बाद में भी 20वीं शताब्दी में इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सब लोगों पर अगर अलग से अगर अनुसंधान होती है, बहुत अच्छा काम हो सकता है। यहाँ पर अगर धरोहर की बात हम कहते हैं तो संस्कृत विद्यालयों का बहुत बड़ी सूची है। नंदनपुर, पलासी, डोरिया, बेलवाड़ी, ढगड़ी, बरदवाहा, तिलाठी, चंपानगर में संस्कृत विद्यालय थे। उसका अभी क्या पोजीशन है कहना मुश्किल है। और उसके बाद लाइब्रेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। सरस्वती पुस्तकालय पूर्णिया सिटी में एक राज लाइब्रेरी था, उनका श्रीनगर में आग लगने से जल गया 1932 ईस्वी में। फिर भी कुमार गंगानंद सिंह का एक अपना भी पुस्तकालय था, उसका क्या पोजीशन है पता नहीं। फिर गढ़बनेली में था, चंपानगर में एक पुस्तकालय, कुर्सेला के जमींदार राम बहादुर रघुवंश नारायण सिंह के पास भी एक पुस्तकालय था। काली प्रसाद पुस्तकालय बलिया रुपौली में, हिंदी पुस्तकालय कटिहार में, साहित्य मंदिर धमदाहा, हिंदी भवन अररिया, हिंदी सेवा सदन किशनगंज। ये पुस्तकालय उस समय के धरोहर जो सामग्रियों का संकलन वहाँ है, बहुत बड़ा धरोहर है। इस पर भी देखना चाहिए कि वो बचा हुआ है या बचाने की आवश्यकता है, तो हम लोग इंडिया के टीम से उस पर ध्यान दे सकते हैं। अब मैं वो अगर आग्रह करूँगा रमन जी से जरा उसको दिखाएं। अगर 5-7 मिनट समय मेरे लिए बचा हुआ है तो उसको मैं दिखा सकता हूँ। रमन जी हम चला दें? जी जी
जी, ये प्रहलाद स्तंभ के बारे में मैंने कहा है, जो बनमनखी ये सिकलीगढ़ में है। यहाँ पर खुदाई के बारे में मैंने अभी चर्चा किया है, खुदाई नहीं हुआ है, तैयारी चल रही थी। नेक्स्ट, इसमें ये बैक करें। इसमें थोड़ा लोगों को वहाँ पर जागरूक करना होगा। इसमें देखते हैं बहुत गंदा लोग करते हैं, सिंदूर लगा रहे हैं और बहुत चढ़ावा वगैरह चढ़ाते हैं, उससे गंदगी होती है, कपड़ा लगता तो फिर ठीक है, इसको भी संरक्षण की आवश्यकता है, बचाने की, सुरक्षा की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ये जलालगढ़ है, संरक्षण का कोई उपाय नहीं। नेक्स्ट, हम लोग पिछले साल गए थे, सर थे और इंटेक के चेयरमैन थे। नेक्स्ट, बढ़ाइए। नेक्स्ट, हाँ, ये काजा कोठी है, जो नील कोठी की बात हम लोग अभी कर रहे थे, और कोठियाँ कहाँ है उसका डॉक्यूमेंटेशन होने की बात हम लोग करें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, हाँ, ये जो कड़ियाडीह जो है वहाँ से मिला है, ये जो पॉटरीज है वो अर्ली मेडिवल पीरियड का है। नेक्स्ट, ये एक्सप्लोरेशन हुआ है, उसमें ये से मिला है बुधिया धनकट्टा से। नेक्स्ट, हाँ, ये रुपोली से है, शिलानाथ रुपोली से। नेक्स्ट, रजवाडीह से। नेक्स्ट, सिकलीगढ़ से ये मिला है, जिसके आधार पर लोग कह रहे हैं कि जो कुषाण पीरियड के है, और कुछ पाल पीरियड के भी उसमें मिले हैं, जिसमें बौद्ध स्तूप की बात और लोग पुरातत्वविदों का कहना है। नेक्स्ट, जब तक यहाँ पर खुदाई नहीं होगी पूरा तब तक कहना मुश्किल है। फिर नेक्स्ट, बहोड़ा कोड़ियाडीह का ये साइट है, वहाँ का फोटो है। बुधिया धनकट्टा का एक टीला है, जहाँ जिसको आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट, रुपोली का सेकंड है यहाँ शिलानाथ में, वहाँ पर जो मिला है ये सामग्री, ये भी अर्ली मेडिवल पीरियड का है। नेक्स्ट, हाँ, ये रजवाडीह का टीला है, यहाँ भी प्राचीन बस्ती होने का संकेत मिलता है। नेक्स्ट, रजवाडीह का दूसरा टीला है। नेक्स्ट, हरमुड़ही का ये टीला है, यहाँ पर प्राचीन मंदिर का भग्नावशेष का मिला है। नेक्स्ट, हाँ, ये भी हरमुड़ही में ये शिवलिंग का जो टूटा हुआ भग्न है। नेक्स्ट, सिकलीगढ़ किला का फोर्ट का है ये। नेक्स्ट, इसके बारे में बुकानन भी लिखते हैं कि वहाँ पर उनके समय में भी मिला था, यहाँ पर जो पुराने अवशेष मिला था फोर्ट का। ये पंजी की जो जिक्र मैंने किया, ये पंजी है। नेक्स्ट, ये अभी पिकाची हाउस की बात जो हम लोग कर रहे हैं, ये पिछले साल सर के साथ गए थे, देखा था। अभी ध्वस्त हो चुका है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और तकलीफ इस बात की है, जो ध्वस्त करवाए हैं वो लोग भी पढ़े लिखे थे, हालांकि हेरिटेज के बारे में उनको कितनी जानकारी थी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, ये पिकाची हाउस का ध्वस्त जो मलबा है। नेक्स्ट, अब हम मूर्तियाँ पर आते हैं। ये कटिहार में बेलवा है एक जगह, बारसोई प्रखंड में, वहाँ मिली है पिछले साल गणेश की मूर्ति। वहाँ पर 350 एकड़ का जगह है, ये टीला है, आर्कियोलॉजिकल साइट था। बहुत बड़ा जंगल भी वहाँ पर था। धीरे धीरे अतिक्रमण होते होते वो केवल अब 7.5 बीघा जमीन बच गया है। एक मंदिर है, सरस्वती मंदिर, और उसमें सैकड़ों मूर्तियाँ प्रतिवर्ष निकलती रही है। प्राचीन बस्ती का वहाँ अवशेष मिलता रहा है। मूर्तियाँ तो बहुत गायब हो चुकी है, और लोग जो है वहाँ के पुजारी बताते हैं कि अब मुझे यहाँ पर अतिक्रमण जो जमीन हो रहा है उसमें तो हम लोगों के जान पर खतरा है। अतिक्रमण में भी वहीं से मिला है, ये मूर्ति विष्णु की है। नेक्स्ट, ये भी विष्णु की मूर्ति है। अब वहाँ देवी की, विष्णु की, सूर्य की प्रतिमाएं मिलती है, गणेश की मिल रही है। और वहाँ ये जो किशनगंज में बड़ीजानगढ़ जो है, वहाँ से भी मिली है बहुत सामग्रियाँ। वहाँ भी गणेश की
और सूर्य की मिलती है। तो गणेश और सूर्य की पूजा हम लोग सबसे पहले करते हैं, पंचदेवता की पूजा करते हैं। तो वहाँ वो संस्कृति जा रही है, कटिहार के बेलवा तक जा रही है ये संस्कृति, जो पंचदेवता की पूजा होने की बात जो हो रही है, ये वहाँ तक हमारा संस्कृति वहाँ जा रहा है। और ये किशन के नेक्स्ट, हाँ, एक हम लोग कैसे नष्ट करते हैं, पाल काल की ये 1100-1200 वर्ष पहले की ये बौद्ध स्तूप है मधुबनी जिला का। तो उसको टीले को ये कैसे हम लोग ढा के और ईंट उठा के लोग ले जाते हैं अगल बगल के लोग अपने घर भरने के लिए, वो देखिए जागरूकता के अभाव में। नेक्स्ट, इस तरह के काम कहीं भी हो सकते हैं। हाँ नेक्स्ट, हाँ, ये उसी टीला को दूसरे तरफ जो काट करके संस्कृत कॉलेज का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट, उसके बाद इधर जो किया हुआ है, तो नल ये जल जीवन योजना या नल जल योजना में उसी टीला पर बोरिंग करके और नलकूप लगा दिया गया, जबकि चारों तरफ खाली जगह है, लेकिन बौद्ध स्तूप के ऊपर नहीं लगा दिया गया है। तो जागरूकता समाज में आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, हाँ, ये वही टीला है, पहले संस्कृत कॉलेज बना, फिर ईंट ढो के लोग ले जा रहे हैं, फिर उस पर शौचालय कुछ बना दिया गया ऊंचे जगह पर, फिर ये गोबर पाथरे का काम हुआ और अंत में ये अब बोरिंग करके और ये जल मीनार बना दिया गया। नेक्स्ट, ये मूर्ति है बिहार में सबसे पुरानी मूर्ति अभी तक विष्णु की मिली है, 7वीं शताब्दी की है, मिली है। और एक दिन के बाद इसका जो पोजीशन है वो देखिए, मंदिर में रखने के बाद फिर पहचानने लायक नहीं। नेक्स्ट, ये दूसरे दिन जो पहचानने लायक नहीं रह गया वो मूर्ति। ऐसा जानकारी के अभाव में लोग करते हैं। पानी, सिंदूर आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम लोग जितने लोग हैं वो लोग कम से कम अपने संपर्क के लोगों को बतावें कि स्वच्छ रखें, और भगवान की दूर से ही अगर प्रार्थना करते हैं, हृदय से अगर आराधना करते हैं तो लाभ होगा ही। नेक्स्ट, ये बहादुरगंज में मछली पकड़ने के दौरान अष्टधातु की ये मूर्ति मिली थी। फोटो देखने से तो लगता है कि एंशिएंट पीरियड का है, ब्रोंज इमेज है। इसके लिए हमने किशनगंज के डीएम से, बहादुरगंज के थाना से सबसे संपर्क किया। किशनगंज के डीएम को लिख के भी दिया, वो बोले हम पटना दरभंगा म्यूजियम में भेज देते हैं, लेकिन वो भी लगता है भूल गए शायद। और उसके बाद और कई सामग्रियां वहाँ मिली थी इससे पहले भी, तो वो सामान भी कहा जाता है वहाँ के लोगों द्वारा जो जिला पदाधिकारी के कस्टडी में रखा हुआ है, लेकिन कहाँ रखे हुए हैं ये पता नहीं। जबकि नियम ये है कि अगर कहीं भी कोई प्राचीन सामग्री मिलती है तो स्पष्ट है, सरकार का नियम है इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 में, कि जिलाधिकारी उसको इमीडिएट उठाकर और सरकारी संग्रहालय में रखवावे। फिर 1978 के पुलिस मैनुअल में स्पष्ट लिखा गया है कि ये पुलिस जो है वो अपने क्षेत्र के जो कहीं भी पुरातात्विक सामग्रियां अगर मिलती हैं तो उसको इमीडिएट उठा के और सरकारी संग्रहालय में रखवावे। व्यवहार में इस तरह की बात नहीं होती है, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी ये नियम है कि अगर कहीं भी कोई सामग्रियां, प्राचीन सामग्रियां मिलती हैं तो उसे संग्रहालय में रखवावे। लेकिन वो अपने मन से व्यवहार में तो नहीं लाते हैं, कहने के बाद भी लिखित देते हैं। कई बार डीएम से संपर्क किया, लेकिन वो थाना में ही है या कहाँ है पता नहीं। नेक्स्ट, इस तरह से अगर, हाँ, ये सिक्का भी मिला है वहाँ से, पुगाखाली ब्लॉक्स में मिला है। इसके लिए भी मैंने लिख के दिया, कहा, लेकिन अभिरुचि अगर सब लोग लेंगे तभी हो सकता है। इसके लिए हम पूर्णिया चैप्टर से आग्रह करेंगे जिलाधिकारी से मिलें, और जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी, उसको हम लोग एक दिन प्रशिक्षण दें हेरिटेज के बारे में, उनके नियम कानून को उनको बतावें कि आपका क्या कर्तव्य होता है, आपका क्या दायित्व होता है। इस तरह के काम हमने दरभंगा में किया भी है, तो पूर्णिया में भी होना चाहिए। पिछले साल मैंने वहाँ के जो डीएम है राहुल जी, उनसे बात भी किया था, तो उन्होंने कहा था ठीक है, कोरोना वाला शांत हो जाता है तो हम लोग इस पर करेंगे। और उसके साथ साथ पुलिस अधिकारी और ये प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि को भी उसमें बैठना चाहिए। गांव के जो प्रधान होते हैं, मुखिया हो, सरपंच हो, उनको भी बैठना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए जरूरी है कि आम लोगों को वो भी बता सकते हैं। हम लोग गांव गांव जाके बता नहीं सकते हैं, लेकिन हर एक गाँव के अगर कुछ लोग आते हैं, बुद्धिजीवी उसमें आते हैं, भाग लेते हैं,
तो उनको हम लोग अगर बताते हैं तो वो लोग अपने जो नज़दीक के लोग हैं उनको बता के ये समझा सकते हैं कि धरोहर क्या है, उसको कैसे हम बचा सकते हैं। तो ये इस पर हम लोग को काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ, ये हरिहर की मूर्ति मिली है, बड़ा दुर्लभ है, ये दरभंगा में मिली है। अभी तक पूरे उत्तर बिहार में केवल ये तीसरी मूर्ति है। इसके लिए हमने कई बार कोशिश किया, पुलिस पदाधिकारियों से, समाज के लोगों से, जिला पदाधिकारी से। जिला पदाधिकारी हाथ उठा देते हैं, गांव के लोग तो तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, देने के लिए तैयार नहीं है। गांव के लोगों से मैंने संपर्क किया और उन्हें कहा कि आप ये मूर्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई गांव में तस्करों की नज़र लगी हुई है। खासकर के उत्तर बिहार की जो मूर्तियां हैं बहुत तेजी में गायब हो रही है, क्योंकि वो आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी मिलती है वो लोग इतने उन्माद में आ जाते हैं कि तुरंत सारे लोग जुट जाते हैं, मंदिर बनाने लगते हैं, चंदा वसूली शुरू हो जाती है, कीर्तन शुरू हो जाता है, और वो कुछ दिन में तक तो बहुत बढ़िया से रहते हैं वो लोग। जब भी शांत हो जाते हैं तो जो मिलने के समय जो तस्कर शांत रहता है वो बाद में सक्रिय होता है। हमारे धरोहर एक एक करके धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। इस बात को स्थानीय लोगों को, आम जनता में समझाना हम लोगों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, ये गणेश की मूर्ति जो है मधुबनी जिला में ऐसे ही गायब हो गई। पहले तो लोग उसको रखे थे मंदिर में, पूजा कर रहे थे, लेकिन जब शीतलहरी का समय था, जाड़ा के समय, चोर आया लेके चला गया। नेक्स्ट, ये शिवलिंग है महाकवि विद्यापति से जुड़ा हुआ उग्रनाथ महादेव का। लोग इतने पानी चढ़ाते हैं कि 3 टुकड़े में शिवलिंग फट गए। अब वहां के लोगों को मैंने समझाया कि पानी नहीं दीजिए, दूर से ही दर्शन कीजिए। दक्षिण भारत के लोग अगर पानी नहीं चढ़ाते हैं तो क्या वो शिव की में आस्था नहीं है? लेकिन लोग मानने के लिए नहीं तैयार हैं। तो हम लोग, जितने लोग इसमें हैं, वो लोग कम से कम इस बात को समझें, अपने संपर्क के लोगों को बतावें कि दूर से ही अगर शिव को पूजा किया जाए तो धर्म ज़्यादा होगा, और पानी ज़्यादा डालने से हम क्षति पहुंचाते हैं, धरोहर को भी, भगवान को भी। नेक्स्ट, ये सहरसा में बुद्ध की दुर्लभ मूर्ति मिली है। वो भी किस जगह की है मैं नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और लोग वहाँ से उठा के म्यूजियम में रखने नहीं देंगे, जो सरकार उसकी सुरक्षा करे। लेकिन ये अभी तक इतनी सुंदर मूर्ति नहीं मिली थी। ये बुद्ध की मार विजय प्रतिमा इसे कहते हैं। नेक्स्ट, ये अभी हाल में इंस्क्रिप्शन मिली है मधुबनी जिला में, तो वहाँ शिवलिंग भी मिली है और मूर्तियाँ मिली हैं, वो तो लाने नहीं दिया। लेकिन जब जिला पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी से मैंने बहुत गुहार लगाई और वो लोग गांव के लोगों को समझाने में सफल हुए कि कम से कम ये अभिलेख कम से कम दे दो, ये अभिलेख वो लोग उन्होंने दे दिया। हमारी दरभंगा म्यूजियम में रखी हुई है। इसको पढ़ने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एपिग्राफी ब्रांच को लिखा गया है। वहाँ के एक्सपर्ट आएंगे, इसको पढ़ेंगे। तो अब वहाँ के जो ये मधुबनी जिला का जो लदनिया गांव है, वहाँ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट, इसी तरह ये जाले में ये गांव है, मनमा गांव है, वहाँ की पुलिस पदाधिकारी द्वारा इंटरेस्ट लिया गया, गांव के लोगों को समझाकर ये मूर्ति लाई गई। तो अगर हम लोग पुलिस पदाधिकारी या प्रशासनिक पदाधिकारियों को समझाते हैं तो कुछ काम होता है, और जो समझ अगर जाए तो। नेक्स्ट, अब ये भारत सरकार का ये साइट है, अशोक का स्तंभ है लोडिया का। ये बगल से पानी रोड तोड़ के बह रही है, पानी बह रहा है, लेकिन वो पिलर जो है कभी भी बह सकता है, अभी तक बचा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको पानी को बंद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया अभी तक। उसके लिए कई बार लिख के दिया गया है। सीतामढ़ी के हेरिटेज एक्टिविस्ट हैं रामशरण अकबर, उन्होंने लिख के दिया भी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी को, जो इस रोड को बंद करके पानी का बहाव रोका जाए, नहीं तो कभी भी ये पिलर बह जाएगा, हम लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। तो अगर अशोक के पिलर के साथ अगर इतनी उदासीनता है तो और धरोहर के बारे में क्या कहा जाए। नेक्स्ट, हाँ, ये विष्णु की मूर्ति दरभंगा में है। कैसे रंग से हम लोग पेंट करते हैं, कम से कम लोगों को समझाएं कि अपने धरोहर को इस ढंग से नष्ट नहीं करें, उसकी मौलिकता को क्षति नहीं पहुंचावें। नेक्स्ट, हाँ, ये
पुलिस का जो दायित्व बनता है कि कहीं भी मिले तो उसको तुरंत म्यूजियम में रखवावे, लेकिन ये पुलिस है जाले थाना के दरोगा जी अपने थाना में लेके उसको कलर कर दिए गोल्डन कलर में, और वहीं पर मंदिर थाना में ही एक मंदिर बना के पूजा करने लगे। खैर पूजा कर रहे थे ठीक थे, ये कलर करने की क्या आवश्यकता थी? तो नियम कानून न समझते हैं न धरोहर के बारे में समझते हैं, उनको समझाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये भक्तों द्वारा किया गया है। इतना सिंदूर लेप के, सिंदूर में नमक की मात्रा रहती है, मूर्तियों को क्षति पहुंचती है, धीरे धीरे मूर्ति में क्षरण आती है और वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पानी से भी ये शिवलिंग है अरिराज का, इसमें दरार आ गई है। नेक्स्ट, हाँ ये उग्रनाथ महादेव में जो भैरव की मूर्ति पानी से, इसमें भी क्षरण आया है। नेक्स्ट, हाँ ये कुछ लोग जो समझ जाते हैं अच्छी ढंग से, एक उझौल गांव है, वहाँ के लोगों को हम लोगों ने कोशिश किया समझाने का। पहले तो 1 साल तक नहीं दिए, पूजा करेंगे हम लोग, मंदिर बनाएंगे। बाद में उन लोग समझ गए कि हम लोग इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, सरकार उसकी सुरक्षा म्यूजियम में कर सकती है, तो उन्होंने मुझे बुला के दिया, तो हम लोग इसे म्यूजियम में रख दिए हैं। अब इस पर अनुसंधान चल रहा है। नेक्स्ट, ये लेन देन गाँव के लोगों से हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये दरभंगा के राज लाइब्रेरी के दुर्लभ ग्रंथ है, उसको किस ढंग से संरक्षण होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है वो देखिए, उस सब पूरा फाड़ के फेंका हुआ था एक कोना में, बहुत दुर्लभ ग्रंथ है ये। नेक्स्ट, ये यही ग्रंथ है, गोल्डन कलर का कवर पेज था, एल्बम टाइप का था ये। नेक्स्ट, ये पिलर है वैशाली में, यक्षिणी की मूर्ति इस पर है, ओरिजिनल शेप में ये है, और कुछ दिन के बाद लोगों ने वहां पर नेक्स्ट कलर करके उसको बर्बाद कर दिया, अब पहचान भी नहीं आ रही है। नेक्स्ट, ये 2000 वर्ष पहले की ये यक्षिणी की मूर्ति है, इसमें इस तरह से हम लोग, हाँ ये बुद्ध की मूर्ति है, चेचड़ का, वैशाली में ही है। पहले पेड़ के नीचे पानी देते देते बहुत इस पर काई जम गया था, पहचान मुश्किल था, लेकिन गांव के लोगों ने उसे फिर साफ सुथरा करके नेक्स्ट उसको हाँ शोकेस में डाल दिया ताकि पानी इस पर नहीं पड़ सके। तो ये हम लोग हर एक जगह ये कर सकते हैं कि पानी से बचाने के लिए और सुरक्षा की व्यवस्था इस तरह से हम लोग शोकेस बना के कर सकते हैं। और एक हमारे सहयोगी हैं मुरारी कुमार झा, वो लगे हुए हैं, देकुली में कुछ मूर्तियां हैं उसके लिए लगे हुए हैं कि उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं और शोकेस बनवा रहे हैं वो। नेक्स्ट, ये थलवाड़ा में, दरभंगा जिला में गणेश की पानी और सिंदूर से देखिए क्या हाल है, उनका कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया है यहाँ। नेक्स्ट, ये पानी से ही इनका भी, गणेश जी का यही हाल है। नेक्स्ट, अब ये, हालांकि अब मेरा भाषण समाप्त हो रहा है, आप लोगों को धन्यवाद। लेकिन ये भी हमारे मिथिला क्षेत्र से विद्यापति के जन्म स्थल है विस्फी, वहाँ से ये उपासिका की मूर्ति मिली है, दुर्लभ है ये भी। और ये लगता है कि वहाँ मंदिर स्थापित करने वाली उपासिका रहे हुए किसी महारानी का है या किसका है, कितना सुंदर प्रतिमा है। तो देखा जाए इस ढंग से हमारे जो मिथिला का है या पूर्णिया का, ये पूर्णिया भी मिथिला का ही पार्ट है, उसको हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। आम लोगों को जागरूक करना होगा और सभी वर्गों के लोगों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं। सरकार के भरोसे ये संभव नहीं है। इंटेक के चैप्टर के लोग, हम लोग इसमें लगे और लोगों को जागरूक करें। आप लोग हमारी बात सुने, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सर के प्रणाम। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सूचनाएं मिली हमें पूर्णिया के बारे में भी और पूर्णिया से बाहर शेष उत्तर बिहार के बारे में भी। और सब पहले हिस्से में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना कि हेरिटेज कानून क्या है, उसमें आम जन की क्या भूमिका हो सकती है, सरकार की क्या भूमिका हो सकती है। अब इस संदर्भ में आगे का जो भी कार्यक्रम है वो बढ़ाने की कोशिश करें। रमन जी। With chair's permission, now the floor is open for discussion as well as question answers if there is any. Now, I would request Rajesh sir to moderate the discussion, the convener of the chapter.
Can we unmute everyone? Rahul ji? Sir, allow mic for attendee. Right. I would request all the participants, whoever has any question regarding heritage conservation, to put up their hands. हैंड अप वाला जो माइक हैंड्स अप वाला जो आइकन है उसको प्रेस करें. विल कॉल योर नेम वन बाय वन. अपना सवाल पूछें और आपका नाम जब पुकारा जाए तो, और फिर उसके बाद म्यूट कर लें अपने आप को. किन्हीं को कोई सवाल है? हेरिटेज क्या है, क्यों जो है सो उसका संरक्षण करना क्यों जरूरी है, इस संदर्भ में कुछ भी आपको जानना हो कुछ, या आपने इतनी सारे जगहों के नाम सुने, कोई जगह क्या आपके घर के पास भी था जो आप देखना चाहेंगे? हाँ, आदित्य राज. यस, आदित्य राज. क्या सवाल है आपका आदित्य? सर, मेरे घर के साइड में रजवाड़ी है. रजवाड़ी है? यस सर. तो जो सर बता रहे थे वो जगह आपने देखा है? यस सर. तो क्या हालत है उस जगह की, और आप क्या कर सकते हैं उस जगह को बचाने के लिए? सर, अब तो वो खंडर हो गया है. हाँ, खंडर तो होना ही है, पुराना भवन है, लेकिन जिस स्थिति में भी है वैसे ही बचाना है. वहाँ से सर ईट सभी लोग लेके जाता है. हाँ, तो ये काम नहीं होना चाहिए. इसमें कुछ हो सकता है? नो अपने सर. हाँ, पापा को बोलिए कुछ उस पर ध्यान दिलवाएं. यस सर, बोलेंगे. जी, ठीक. और सर से कुछ पूछना भी था? हाँ सर. हाँ, अच्छा ठीक. और किसी को कुछ? आप लोगों के लिए जो है सो एक्सरसाइज जो सर ने बताया कि हम लोगों को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है सारा हेरिटेज वगैरह आसपास का. तो हम लोग जो है सो इस इंफॉर्मेशन को आपकी मदद से क्राउड सोर्स करना चाहते हैं. आप चैट में देखेंगे तो चैट में लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, जहां पर आपको अगर कोई जानकारी है कोई ऐसे जगह की जो हेरिटेज है, हेरिटेज का जैसा सर ने बताया कि 100 साल पुराना होना चाहिए, कानून कहता है, लेकिन कुछ भी जो है सो जो वैल्यू है आज़ादी के पहले की चीज़ है या उसके बाद की भी है, लेकिन वैल्यू है, थोड़ी पुरानी है, बिल्डिंग से है या किसी भी तरह की हेरिटेज है, तो उसका आप उसको लिस्ट करने में मदद करें और पूर्णिया इंटैक्ट चैप्टर को. और उसके अलावा एक लिंक जो है सो आप लोग चूंकि अंत तक अभी तक सुन रहे हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड इन हेरिटेज कंजर्वेशन. तो आपके लिए वही चैट में फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसके थ्रू आप पूर्ण हेरिटेज विद्या विहार का हेरिटेज क्लब ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम ये सब डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और कंजर्व करने के लिए अगल बगल के हेरिटेज का प्रयास करेंगे. और कोई किसी को कुछ जानना हो? अच्छा, हम ही पूछ लेते हैं सर कुछ सवाल जो हम ये जो मूर्तियां मिल रही थी, ये जो सिंदूर वगैरह का, ये सब क्या कितनी पुरानी मूर्तियां हैं ये सब? ये जो मूर्तियां हैं वो 1000 वर्ष पहले की हैं, अधिकतर उसी के आसपास है. कुछ मूर्तियां उससे पहले की भी है, 1200-1300 वर्ष पहले की भी है. लेकिन बच्चों में सबसे ज़्यादा ये जानकारी ये होनी चाहिए कि जो मूर्तियां हम लोग देखें उसको लोग गंदा नहीं करें, और बच्चे अगर पर्यटक स्थल पर कहीं जाते हैं तो वहाँ जो हमारे हेरिटेज हैं वहाँ पर उसको गंदा नहीं करें, उस पर कुछ लिखे नहीं, कहीं पर थूके नहीं, ये सब बात रहना चाहिए. जाते हैं कुछ लोग जाते हैं वहाँ कुछ लिख देते हैं, कहीं पिलर है वहाँ पर कुछ लिख देते हैं, कहीं पर
खरोंच देते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। तो अगर वो करते हैं तो उससे हेरिटेज को क्षति पहुंचती है। हम लोग वहाँ एक अशोक का पिलर जो अभी दिखाए हैं जो लोरिया का है, वहाँ पर देखे हैं कि पिलर के जब तक उस चारों तरफ से सुरक्षा नहीं थी तो उसमें कई जगह वो उसमें कुछ से कुछ लोग लिख दिए हैं। तो इस तरह से 2200-2300 वर्ष पहले का जो पिलर है उसको हम क्षति पहुँचाए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ मंदिर की में अगर मूर्तियां हैं उसको हम लोग बचाते हैं, गांव में जो टीले हैं उसको हम लोग रक्षा करें, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहने दें, उसमें उसके मौलिकता को हम लोग भंग नहीं करें। और ये भी करें कहीं भी अगर पर्यटक स्थल जाते हैं उसके दीवार पर या उसी सामग्रियों को छुए नहीं, उस पर कुछ लिखे नहीं, उसको तोड़े नहीं, उस पर गंदा नहीं करें। ये सब ध्यान रहना चाहिए बच्चों के लिए। इसी से जुड़ा अगला सवाल हम पूछना चाह रहे थे सर कि हेरिटेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, मतलब इस पर थोड़ा बच्चों को बताया जाए क्यों हेरिटेज को बचाया जाए, बचाना क्यों जरूरी है। देखिए धरोहर जो है वो हमारे पुरखा के द्वारा उपयोग में किया गया जो वस्तु है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग में किया गया जो वस्तु है उसे हम लोग धरोहर कहते हैं। उसको जब तक हम लोग बचा नहीं सकेंगे तब तक उसके बारे में हम जान नहीं सकते हैं। हमारे पूर्वज किस ढंग से रहते थे, हम किस ढंग की उनकी अभिरुचि थी, कैसे किस ढंग से क्या काम करते थे, ये सब हमारे जब सामग्रियां बची रहेगी तभी हम समझ सकते हैं। और अगर वो बची ही नहीं रहेगी तो उस पर हम क्या समझ सकते हैं हमारे पूर्वज क्या थे, क्या रखते थे, कैसे करते थे। अभी हम गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी आए थे पूर्णिया और कहाँ टिके थे, वहाँ पर घर नहीं है। अगर पुराना घर बचा रहता तो हम लोग जाते देखते कि यहाँ पर बचा हुआ है। अभी हम लोग चंपारण में जैसे हमारे एक आश्रम है गांधी जी का आश्रम, कस्तूरबा गांधी और गांधी जी वहाँ पर आश्रम स्थापित किए थे, स्कूल बनाए थे। तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि गांधी जी ने किस ढंग से यहाँ के लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम किया। उसी तरह 1934 के भूकंप में जब गए थे यहाँ ये पूर्णिया क्षेत्र में जब गांधी जी गए थे तो क्या क्या काम किए थे वो हम कैसे जानेंगे जब तक उनके समय का कुछ स्मृति चिन्ह नहीं रहे। तो ये स्मृति चिन्ह को बचाना बहुत आवश्यक है। जब तक उसको हम नहीं बचा सकेंगे तब तक अपने संस्कृति को नहीं जान सकते हैं, अपने अतीत को नहीं जान सकते हैं। रमन सर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर अभी आपने अपने प्रेजेंटेशन में सिकलीगढ़ साइट के बारे में मेंशन किया। 2007-8 सेशन में और 2009 3 इयर्स के दौरान में समर के दौरान में मैंने पूर्णिया के कुछ इलाकों में और मधेपुरा के ऑलमोस्ट सारे विलेजेस को सर्वे किया था, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन किया था मैंने। तो उसमें जब मैं सिकलीगढ़ साइट पहुंचा तो उस समय मुझे याद है कि अप्रॉक्सीमेटली जो माउंट था अप्रॉक्सीमेटली जो माउंट था वो 20 to 25 फीट्स उस समय था। और ऐसा मुझे लगता है कि पूर्णिया जिले में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पोटेंशियल साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट, जिसकी एक्सकैवेशन से शायद हमें बहुत कुछ यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जो मिस्ट्री है कई चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा चीज़ मैंने वहाँ पे स्पेशल काइंड्स ऑफ ब्रिक्स भी मैंने पाया था, कई पॉटसर्ट्स, पॉटरीज, सेरामिक्स पीसेस भी पाए थे। और ऐसा मेरा मानना था ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस विच आई गॉट फ्रॉम देयर कि डेफिनेटली इट वाज द अशोकन पिलर इज ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस माउंट। और पूर्णिया डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा होगा अशोकन समय में, क्योंकि अशोकन पिलर उसी जगह प्लेस किए जाते थे। आइदर वो ट्रेड रूट्स हुआ करता था या कोई मेजर प्लेस रहा करता था जहाँ पे कि उनको मैसेज देना होता था। और इसके अलावा जानकी नगर के आसपास में लादोगढ़, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड येट बट आई हैव मेंशन्ड इन वन ऑफ माय पब्लिश्ड बुक्स। लादोगढ़ में भी मैंने यहाँ पे जानकी नगर के आसपास कुछ रिमेन्स मैंने सेरामिक्स के वहाँ पाए, छोटी माउंट भी पाई। इसके अलावा जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है मधेपुरा, वहाँ पे ऑलमोस्ट 442 विलेजेस को मैंने सर्वे किया और मुझे लगता है कि डजन्स ऑफ साइट्स जो बिल्कुल अनरिकॉर्डेड थे वहाँ मिले, इंटरेस्टिंग साइट्स। और 2-3 नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा। श्रीनगर, जिसके बारे में सर आपसे पर्सनल डिस्कशन में आपने मेंशन भी किया था, जहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी मिला है और
बड़ी ही दुर्लभ काइंड्स के वहाँ पर मूर्तियाँ और कई तरह के स्कल्पचर्स, कई तरह के और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वहाँ अभी भी पड़े हुए हैं। वहाँ के जो मुखिया थे उस समय में, उनसे मेरी काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई थी, बट हार्डली पीपल न्यू एनीथिंग अबाउट दोज रिमेन्स एंड दे हैड एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोज रिमेन्स, सॉरी टू से दैट। तो मुझे लगता है कि सर मधेपुरा वाले इलाके में, पूर्णिया के नेबरिंग इलाके में, श्रीनगर, नया नगर में टेम्पल साइट है जहाँ मैंने लक्ष्मी की प्रतिमा, भगवती की प्रतिमा लोग कहते हैं वहाँ पर, मुझे ऐसा महसूस हुआ टाइप ऑफ स्कल्पचर मूर्ति को देख करके कि मे बी वो मेडिवल टाइप, लेट मेडिवल पीरियड का शायद वो मूर्ति है। और मधुकर चक एक न्यू साइट मुझे मिला जो बिहारीगंज में मैंने पाया था। वहाँ अभी भी उस समय में माउंट जो है दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 फीट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, और लगभग 3 से 4 एकड़ में फैला हुआ था। और मुझे डजन्स ऑफ ऐसे साइट्स मिले जिसपे कि इंक्रोचमेंट्स के कारण या जो अभी खेती बाड़ी हो रही है, कल्टीवेशंस हो रहा है और लोग उसके बारे में नहीं जान रहे थे, तो उसके कारण जो रिमेन्स थे वो काफ़ी हद तक जो है डिस्ट्रॉय हो गए। तो मे बी सैल्वेज एक्सप्लोरेशन एंड सैल्वेज एक्सकैवेशन के माध्यम से कुछ काम किया जा सकता है। ये जस्ट मैं शेयर कर रहा था सर। जी आरव, आप कुछ पूछना? हाँ सर, प्लीज बोलिए। जी, अभी तो मैंने एक बनमनखी प्रखंड का जो सर्वे हुआ है उसकी बात कहा है मैंने, लेकिन अगर पूरे रीजन में अगर उसका एक्सप्लोरेशन किया जाए तो सही में सैकड़ों साइट आएंगी, और ये उन लोगों के लिए जवाब होगा कि ये सब कुछ बाहर नहीं है हमारे क्षेत्र में है। लेकिन ये करने के लिए हमारे नए पीढ़ी के लोगों को, विश्वविद्यालय को, हम पुरातत्व निदेशालय बिहार सरकार है उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर अब कोई नहीं है, सारे लोग रिटायर कर गए, लेकिन विश्वविद्यालय में जहाँ जहाँ पुरातत्व की पढ़ाई है वहाँ के स्टूडेंट को टीचर अगर चाहें तो ले जा सकते थे, काम करवा सकते हैं। और ये उन लोगों को जो, क्योंकि उन लोगों का प्रैक्टिकल जो होता है पुरातत्व विज्ञान का, वो भी तो विज्ञान ही है, तो एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन ये दोनों छोड़ के बाकी कैसे वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं पता नहीं। अगर कोई एमए पास करता है एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी से तो उनके लिए एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन दोनों आवश्यक है। ये बिहार में कहीं नहीं हो रहा है दोनों में से। तो ये अगर टीचर लोग अगर तैयार होते हैं, कुछ स्टूडेंट के लोग लेकर घूमे तो ये काम हो सकता है, साइट सब आएगा बाहर, और उसके आधार पर हम लोग अभी जितना है उसके लिए भी हम लोग गांव के लोगों को समझा सकते हैं, भाई जहाँ पर है उतना भी कम से कम छोड़ दो, उसको बचने दीजिए। नहीं तो धीरे धीरे तो जो आप, जैसे आपने कहा 10 साल पहले आप जाइएगा, 20 साल पहले हम गए थे एक दरभंगा जिला के हावीडीह में, और इस बार जब गए हैं तो वहाँ पर पूरा टीला खत्म हो चुका था, पूरे बस्ती बस गई थी, पूरा बहुत बड़ा मार्केट हो गया था। वैसे ही कटरागढ़ में गए हैं, तो जितने भी साइट हैं सबको लोग डिस्टर्ब कर दिए हैं, सब पर बस्ती बस गई, निर्माण काम हो रहा है। अभी मैंने बेलवा का बात कहा ही है, 350 एकड़ में केवल 7.5 एकड़ बच गया है। तो इस तरह से अतिक्रमण तो होना ही है अगर हम लोग, इसलिए हम लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा इस क्षेत्र में। आरव कुमार, आप कुछ जानना चाहते हैं? बोलिए। सर क्लास एंड में। क्या सर क्लास एंड में नहीं समझ सकते? ठीक है बेटा। श्रेयांश, आप कुछ जानना चाहते हैं? श्रेयांश, हेलो सर। हाँ, मेरी नानी घर के एक मंदिर में ठीक से बोलो बेटा। हाँ, तुम्हारी नानी कहती हैं? मैम मेरे नानी घर के एक मंदिर में एक भगवान का मूर्ति प्रकट हुआ था। तो सर बता देंगे प्रकट होना क्या होता है सर मूर्ति? प्रकट होना कैसे प्रकट हुआ था ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जमीन के नीचे से मूर्तियां मिलती हैं, वो भी अगर कहें
कि प्रकट हुआ है सही में। ये होता क्या है, कभी भी अगर मंदिर है उसमें मूर्तियों की पूजा हो रही है, भूकंप या बाढ़ में अगर वो मंदिर ध्वस्त हो गया, जमीन के नीचे चला गया, बाद में कभी मिट्टी खुदाई के क्रम में वो भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि वो तो मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं। और अभी जो सैकड़ों मूर्तियां मिली हैं उत्तर बिहार में, वो इसी ढंग से प्रकट हो रही है, भगवान प्रकट हो रहे हैं कि अगर जेसीबी का मशीन चलाया जाता है, मिट्टी खुदाई होती है, तो उसमें भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन वो इतिहास उसका वही है कि पहले भी वहाँ 700 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले वहाँ मंदिर रहा होगा, और कभी भूकंप में या बाढ़ में ध्वस्त हो गया और वो दब गया नीचे में, और बाद में वो धीरे धीरे वो प्रकट होते हैं भगवान। श्रेयांश, और कोई कुछ नहीं पूछना चाहते? हम राजेश जी, मिस्टर राजेश, मैं पाल बोल रहा हूँ, आर के पाल। यस सर, यस सर। रत्नेश्वर जी को नमस्कार। मैं भी जामताड़ा में हूँ, आपको जामताड़ा से ही नमस्कार कर रहा हूँ। शिव कुमार मिश्रा जी को नमस्कार एवं बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। इतना बढ़िया और इतने विस्तृत रूप से अपने मंदिरों, मूर्तियों के बारे में और भी दूसरे धरोहर के बारे में बताया, ये बिल्कुल बहुत ही काबिल तारीफ है। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी जिसकी चर्चा बहुत कम होती है हमारे बिहार में, क्या पूरे देश के ही गांव घरों में, जिला स्तर में, इवन राज्य स्तर में, वो है लाइब्रेरी के संबंध में। आपने बहुत से लाइब्रेरी का नाम गिनाया, जो लाइब्रेरी लोग अपने कैपेसिटी में, पढ़े लिखे लोग, जमींदार लोग, राजा लोग, या जिनके यहाँ दरबार लगता था वैसे लोग रखा करते थे। ये मुझे बहुत प्रभावित किया, खासकर इस बात के लिए कि आज लोगों को लाइब्रेरी से कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो बताऊंगा कि पढ़े लिखे जिनको हम लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें शायद ही 1% व्यक्ति ऐसे होंगे जो लाइब्रेरी की बात सोचते भी हैं कभी भी गलती से भी। ऐसे में आपने उस समय की लाइब्रेरी की बातें कही जो 100, 200, 300 साल पहले लोग मेंटेन किया करते थे। और जिस बच्चे ने पूछा कि धरोहर को क्यों रखना चाहिए, क्यों उसको सहेज कर रखना चाहिए, उनको भी इससे पता लगेगा कि देखो बच्चे, आज लाइब्रेरी की बात तुम भी कम से कम सोचा करो। लाइब्रेरी एक ज्ञान का भंडार है। अगर आज से 200-300 साल पहले लोग लाइब्रेरी रखने के बारे में सोचते थे, वहाँ 10 लोग आके पढ़ते थे, वहाँ लोगों की मजलिस लगती थी, तो आप स्टूडेंट होकर क्यों नहीं लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं? खासकर हमारे विद्या विहार स्कूल पूर्णिया में तो बहुत रिच लाइब्रेरी है, बच्चे यहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को और भी प्रोत्साहित करेगा आपका ये भाषण। दूसरी चीज़, क्यों धरोहर को सुरक्षित करना चाहिए, उसका जवाब आपने बहुत बढ़िया से दिया, इतिहास और संस्कृति के बारे में। उसके साथ मैं थोड़ा सा 2-1 सेंटेंस जोड़ना चाहूँगा कि इससे ये पता चलेगा बच्चों को, छात्रों को, हम सबों को, कि आज से 800, 900, 1000 साल पहले कहाँ से ये सब चीज़ें बनती थी। कोई मूर्ति अष्टधातु की है। अष्टधातु क्या है, बच्चे इसको जाने अष्टधातु क्या है। कोई ब्रॉन्ज की बनती थी, कोई पीतल का, कोई तांबे का। ये सब वहाँ कहाँ से आता था, ये सब जानने के लिए मुझे प्रोत्साहित करेगा। हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सब धातु भी उस समय में यहाँ पर मिलते थे, तो इन सब के ज्ञान के लिए भी धरोहर की रक्षा करना आवश्यक है। इसके पीछे संस्कृति और इतिहास तो है ही। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, मिश्रा जी से मैं परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन ये भाषण बहुत ही शिक्षाप्रद रहा, बहुत सुंदर रहा। आयोजन करने वाले राजेश जी या जो भी लोग हमारे करते ही रहते हैं। और आज फोटो पर मुझे हमारे मित्र चेयरमैन रत्नेश्वर बाबू दिख रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता हुई, आप समूह से मिलकर प्रसन्नता हुई। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अच्छा, अपूर्व मिलन एक सवाल पूछना चाहते हैं। अपूर्व, पूछिए। हम एक जगह गए थे बहुत पहले, याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसा सुने थे कि एक शिव जी टाइप का मूर्ति है और वो ग्रो करता है। तो क्यों ग्रो करता है, वो क्या कारण है उसका?
सुनने वाली बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और उसको देखना चाहिए। आप देखें, खुद उस पर विश्वास करें। सुनी हुई बातें ज्यादातर बढ़ा चढ़ा के भी कही जाती है, इसलिए उसके लिए जरूरी है कि उसका प्रमाण आप देखें। तो उस पर हम नहीं कुछ करना, आप भी ध्यान उस पर नहीं दें, सुनी हुई बातों पर। आप कुछ पूछना चाहते थे, पानी का एग्जैक्टली क्या प्रभाव पड़ता है? आपने मैसेज किया था। यस सर। और सर आप एक और बात बोले थे कि मतलब जो वो मूर्ति पाया जा रहा है तो वो सब पे मतलब पानी से उसमें क्या होता है? पानी अगर उस पे पड़ता है तो देखिए, पानी में नमक की जो मात्रा होती है ना, वो पत्थर को नष्ट करता है। तो पानी का ज्यादा उपयोग होने से पत्थर की जो मूर्तियां हैं उसमें क्षरण आती है। और पानी नहीं, पानी के साथ साथ और भी चीज लोग चढ़ाते हैं, जैसे सिंदूर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, मिठाई लोग चढ़ा देते हैं। मिठाई चढ़ाने से ये होता है कि लोग तो मिठाई चढ़ा दिए, चींटी लगती है, चूहा लगता है, वो चींटी धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति को भी क्षति पहुंचाती है। इस ढंग से अगर दूर से भी, इसलिए हम लोग मना करते हैं, ये सबसे परहेज करना चाहिए। तब हमारा जो धरोहर है, हमारे जो ये मूर्ति है, उसको हम बचा सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, उसको क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। पानी में तो बहुत क्षति पहुंचती है। और आप बाबा धाम का नाम सुने होंगे, देवघर का, वहाँ पर इतने लोग पानी चढ़ाते हैं कि पहले वाले शिवलिंग जो है सो उसमें क्षरित हो गई, नष्ट हो गई, और उसके बाद उसको कवर दिया, डाला गया है उसमें। तो ये हम लोग के सामने कि ये 5-7 साल पहले उसको चेंज किया गया है। तो इस ढंग से अनेक मूर्तियां, ये शिवलिंग है, शिवलिंग पर तो पानी लोग डालेंगे ही, और जिसके चलते ये हो रहा है कि बहुत क्षति पहुंच रहा है। और आप ये दक्षिण भारत में देखेंगे, कहीं पानी नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये भी यहाँ के अपने जो संपर्क के लोग हैं उन लोगों से परहेज करें, दूर से ही प्रणाम करें, अच्छा रहेगा। पानी डालने से उसमें क्षति पहुंचती है। थैंक यू सर। अंत में चेयरमैन सर का अध्यक्षीय भाषण। हाँ सर, आप अंत में कंक्लूड कर दें सर। सर हाँ, आई थिंक अच्छा, आपका प्रेजेंटेशन है कुछ? सर रमन, डॉक्टर रमन, आपका Intech Pune chapter, it was founded in Intech Pune chapter, it was founded in 2020 in the month of March, and we can see some photographs now. Sir, next. Now this was the inaugural function, the poster for the inaugural function. It was on 15th March 2020. So next photographs. Now we can see here the chairman of Intech, national chairman of Intech, plus Ratneshwar sir and the present convener Rajesh sir. They are inaugurating the Intech Pune chapter. Next. Now there are dignitaries. We can see they are sharing the dais during inaugural function in BBIT in March in the same function. Next. Rajesh sir, the convener of the Pune chapter. He was giving his presentation. Next. We can see here the guests taking a look at Intech Pune chapter's collections, different kinds of journals and other kinds of books and other kinds of materials which has been collected by Intech and kept in its office. Next. Now this was the heritage walk with the distinguished guests. We can see the chief guest there, the Intech chairman, as well as we can see Shiv Kumar sir also, Ratneshwar sir,
Rajesh show sir, it others. on the big screen. It is not visible at all. हाँ, Next. माने it is not visible there. On the small screen, it is not visible. ठीक है सर, एक बार उसको कर लीजिए। Sir is trying to do that. कुछ बढ़ा क्या सर? हाँ, आप आगे बढ़िए। Ji sir. Sir, next one, sir. Now here we can see the Intech National Chairman being felicitated by Ratneshwar sir. Next, sir. A group here we can find the group photograph of dignitaries and guests who were present in the inaugural function of Intech Purnia chapter. Next. Intech Purnia chapter's program in Purnia University campus. We can see in the conference room here. We can also find Dr. Manindra, if I'm not mistaken here, and Ramesh sir, Ratneshwar sir, and others. Next. Now again the patron Ramesh sir with the Purnia University former Vice Chancellor, Professor Rajesh standing in the middle, and the other dignitaries we can find. Next, sir. Now the convener of Intech Purnia chapter, Mr. Rajesh sir, addressing during Intech Purnia chapter's program in Purnia University campus. Next. Now here we can see the guest and audiences. The conference hall was almost full in this program. In the front we can find here Ramesh sir and other dignitaries sitting. Next, sir. I think the presentation has ended. Thank you very much. Sir, kindly now we would request Chairperson sir to share his opinion and say a few words on this. Thank you, Raman ji. मेरी आवाज साफ जा रही है ना? जी सर, बिल्कुल। मैं किन शब्दों में आज के आयोजन के लिए आप सबों को धन्यवाद दूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और उससे भी अधिक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि शिव कुमार जी ने कब समय निकाल कर पूर्णिया पर इतनी बातें इकट्ठा कर ली कि मैं उसमें कुछ भी जोड़ पाने की स्थिति में अपने को नहीं पा रहा हूं। वो बाकी बातें तो उनकी अपनी थी, लेकिन उन्होंने पूर्णिया पर भी काफी बातें एकत्र कर ली। फिर भी अध्यक्षता के नाते मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं दो एक बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा जल्दी से। मैंने अपने ही कारणों से कहा था कि ठीक 7:30 में समाप्त हो जाना चाहिए, पर कई कारणों से मैं मुक्त हो गया हूं, और इसलिए मैं अगर थोड़ा 5 मिनट ज्यादा भी बोल जाऊं तो कृपा कर मुझको सहन कीजिएगा। सबसे पहली बात जो शिव कुमार जी की मुझे अच्छी लगी, वो लोगों में जागरूकता, ये कैसे लाई जाए। अब देखिए, पिकाची हाउस रंगभूमि मैदान के उत्तर की ओर था। मैं भी उसमें कई दफा गया हूं, लेकिन वो नहीं रहा। पर ये कितने लोग जानते हैं कि रंगभूमि हाउस के चारों ओर आज भी कई मकान हैं जो दावा करते हैं हेरिटेज होने का, और उनकी सुरक्षा आवश्यक सी है। जैसे सर्किट हाउस की ओर से जो सड़क आती है और वो जहां से पूर्णिया कॉलेज की ओर मुड़ती है, वहां बाएं हाथ पर आपने एक घर देखा होगा जिसमें शायद आजकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस चल रहा है। वो एक बड़े अंग्रेज अधिकारी का घर था। फिर जहां आज वो स्कूल जो है उत्तर में,
क्या नाम है, अरे बड़ा नामी स्कूल है, उर्सुलाइन कॉन्वेंट, हैं? उर्सुलाइन कॉन्वेंट। हाँ, उर्सुलाइन कॉन्वेंट। उर्सुलाइन के लगे ही एक और मकान है। फिर ये श्रीनगर की ओर जो सड़क जाती है, उस सड़क का नाम ही था पलटनिया सड़क, क्योंकि अंग्रेजों की पलटन यानी सेना उसी होकर जाया करती थी उत्तर में नेपाल से होने वाले डिस्टरबेंस को रोकने के लिए। और उस सड़क पर पूरे रास्ते में गुणवंती हो या और कोई जगह हो, कई जगह हैं जहां ऐसी जगह हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए, पर उसके विस्तार में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। एक बात जो शिव कुमार जी ने कही कि लोग कहते हैं कि गंगा के उत्तर में कुछ नहीं है, और बार बार सिकलीगढ़ की हर किसी ने चर्चा की, रमन जी ने भी चर्चा की। मैं सिकलीगढ़ के विषय में ये कहूं कि उसको सिकलीगढ़ तो कहा ही जाता है, पर वहां जो स्तंभ है जिसके बाद, जिसे प्रहलाद स्तंभ कोई कह लेता है, कोई और कुछ, पर वस्तुतः उसका नाम, स्थापित नाम मानिक थंब है। मानिक थंब, उसी थंब से कहते हैं कि नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और प्रहलाद का, ये तो कहने वाली बात हुई, लेकिन ऐतिहासिक सच ये है कि वो अशोक कालीन स्तंभ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिलीप चक्रवर्ती जैसे स्थापित आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं। दिलीप चक्रवर्ती ने तो यहाँ तक कहा है कि सिकलीगढ़ के चारों ओर जाने कितने एकड़ में फैले हुए जमीन में एक नगर बसा हुआ था। तो उस नगर सभ्यता की खोज तभी हो सकेगी जब चिन्हित करके उन स्थानों को खोदा जाए जहां संभावना है कि कुछ मिल सकता। उन्होंने कहा ऐसी संभावना है कि बहुत कुछ मिलेगा। मिलेगा या नहीं ये तो पुरातत्व जानने वालों की बात है, मैं उसमें कोई दखल रखता नहीं हूँ, पर अगर किसी ने कहा है तो उसमें खोज होनी चाहिए। हेरिटेज बिल्डिंग की जब बात हो रही थी तो मेरे दिमाग में, और ये पूर्णिया के लोगों को ये जानने में बड़ा अच्छा लगेगा कि 3 अंग्रेजों के कब्रगाह हैं, 3 सिमेट्रीज हैं अंग्रेजों के। एक जहां आजकल ये डॉक्टर पीसी झा वाला हॉस्पिटल है, मैक्स 7, उस हॉस्पिटल के थोड़ा उत्तर और थोड़ा पूरब की, उत्तर और पूरब की ओर, सॉरी दक्षिण और पूरब की ओर जो जगह है वहां पर एक सिमेट्री है, और वो सिमेट्री बहुत खराब हालत में जा रहा है। मैंने उसे बहुत अच्छी हालत में देखा था काफी दिनों पहले, आज से कोई 30-40 वर्ष पहले, पर इन वर्षों में उसकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। और वो वहाँ इतनी सूचनाएं भरी पड़ी हैं, एक एक कब्र पर जो बातें लिखी हैं, उससे जो शिव कुमार जी कह रहे थे नीलेहे साहबों के बारे में जानकारी के लिए बहुत अधिक जानकारी मिल सकती है। वो दफन पड़े हैं वहां पर। फिर 2 अपेक्षाकृत नए, पर अब वो भी खंडहर हो रहे हैं, सिमेट्रीज कला भवन पूर्णिया के पास है। 2 इसलिए कि एक प्रोटेस्टेंट का, एक कैथोलिक का, लेकिन दोनों ही में जो लोग दफन पड़े हैं वो पूर्णिया में काफी दिनों रहे, और पिकाची या फिर हेज या पामर, ये बहुत सारे अंग्रेज जो बड़े नामी हुए और पूर्णिया के इतिहास में उनका अपना ही योगदान है। वो कहने लगूंगा तो उसमें मुझे ज्यादा रुचि भी आएगी और समय भी लग जाएगा, पर मैं नहीं बोल रहा हूं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उन कब्रगाहों के माध्यम से, कब्रगाह में जो कब्र भरे पड़े हैं, और ऐसे कब्र सिर्फ पूर्णिया में नहीं है, पूर्णिया पुराना जो पूर्णिया जिला था उसमें किशनगंज में भी है और कटिहार में भी है। खास तौर पर अररिया का मुझको बहुत अंदाज नहीं है, शायद अररिया में भी हो, लेकिन कटिहार और किशनगंज में तो हैं। उनकी खोज की जानी बहुत जरूरी है, तभी हम हेरिटेज बिल्डिंग की बात कर सकते हैं। पंजी की बात की शिव कुमार जी ने, उस पर मैं अपनी टिप्पणी दे सकता हूं कि गिरिजानंद झा नाम के एक पंजीकार थे, जिस परिवार के अभी ये जिनकी आपने चर्चा की, मोहन जी पंजीकार, विद्यानंद झा, असल नाम विद्यानंद झा है, घर का नाम मोहन जी। तो
तो मोहन जी ने तो बहुत बड़ा काम किया है, बहुत विशाल पुस्तक उन्होंने लिख दी है पंजी को लेकर। लेकिन जो शिव कुमार जी कह रहे थे कि पंजी की रक्षा ये गिरिजानंद जी के घर में, पंजी तो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है मोदानंद झा जी के घर में, और उनके बच्चे अभी भी प्रैक्टिस करते हैं पंजी कार्य, अभी भी वो उस कार्य में लगे हुए हैं। पर गिरिजानंद जी के यहाँ जो पंजी पोथी है उसका महत्व दूसरा है, दो कारणों से। एक तो उनके घर में अब कोई प्रैक्टिस नहीं करता है, तो वो जैसे तैसे ऊपर करना बहुत आवश्यक है। मैं एक बार गया भी था वहाँ, जब मैं विनोदानंद झा पर एक किताब लिख रहा था तब, क्योंकि एकमात्र पंजीकार गिरिजानंद झा जी हैं पूरी मिथिला में जो गंगा के दक्षिण बसे मैथिल ब्राह्मणों की पंजी पर काम करने के लिए गए और वहां से बहुत सारा नोट करके ले आए, और पहली बार उन लोगों का पंजी में कुछ दर्ज हुआ। आप अंदाज कीजिए, अब जैसे विनोदानंद झा के पूर्वजों के बारे में आप जानना चाहेंगे तो एक सीमा के परे कुछ नहीं मिलेगा। वो अगर मिल सकता है तो मुझको नहीं मिला, नहीं दिखा पाए उनके बच्चे, पर ये चेष्टा की जा सकती है हम लोगों के द्वारा। भाषा और लिपि की बात की गई। पूर्णिया जितना बड़ा जिला था या आज भी जितनी बड़ी कमिश्नरी है, उतने बड़े क्षेत्र में मैं शायद गलत नहीं होऊंगा यदि कहूं कि दुनिया में कोई एक क्षेत्र नहीं होगा जहां इतनी भाषाएं बोली जाती हों जितनी पूर्णिया में बोली जाती हों। और भाषाएं ही नहीं, भाषाओं के जो विविध रूप होते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पर जो बदलते रूप होते हैं, उन रूपों में भी अलग बोली जाती है, और मूल रूप में जो भाषा है वो तो बोली जाती है। ऐसी अनेक भाषाएं हैं, अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, बंगला, मैथिली और जाने और क्या क्या, अंगिका, बज्जिका, सब बोली जाती है वहाँ पर। ये भोजपुरी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। छपरा के लोगों की बात कर रहे थे शिव कुमार जी। छपरा के एक रामदेनी तिवारी द्विजदेनी फॉरेस्टगंज के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके नाम पर वहाँ कई संस्थाएं हैं। वो एक स्कूल के शिक्षक थे, उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं पूर्णिया पर। वो छपरा के रहने वाले थे लेकिन पूर्णिया के होके रह गए, और मुझको लगता है आधुनिक काल में उनसे पहले, और मैं अगर ये कहूँ तो बहुत अतिशयोक्ति मत मानिएगा कि वो एक तरह से फणीश्वर नाथ रेणु के गुरु भी थे। फणीश्वर नाथ रेणु ने उनके साथ स्कूल में बैठ के पढ़ाई की, घर में पढ़ाई की, उनके साथ नाट्य संस्थाओं में हिस्सा लिया, तो उनका बड़ा योगदान है। फणीश्वर नाथ रेणु की तो चर्चा ही क्या करना। मूर्तियों के विषय में किसी छात्र ने पूछा कितनी पुरानी हैं मूर्तियां। बिल्कुल ठीक कहा शिव कुमार जी ने, का अधिकांश 1100-1200 ईस्वी के आसपास की है, यानी पाल काल की है। पाल काल से पहले की दो एक मूर्तियां बुद्ध की या और कोई जो उन्होंने कही, वो कहीं कहीं मिल जा सकती हैं, मिली भी हैं शायद, पर मुझको अनुमान नहीं है। मेरे जानते अधिकतर मूर्तियां पाल काल की हैं और उनकी रक्षा करने की चेष्टा की जाती है। वस्तुतः हुआ ये कि एक तो पूर्णिया में ऐसे भी, उत्तर बिहार के बारे में जो कहा जाता है वो कहा जाए, उस उत्तर बिहार में भी पूर्णिया में खास तौर पर, हाँ मैं भाषा की जब बात कर रहा था तो एक बात जोड़ लूं तब आगे आऊंगा इस विषय पर। लिपि 1854-55 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया बंगाल के कुछ दावों पर विचार करने के लिए, और बंगाल के दावों में तो सारे ही पूर्णिया पर दावा था, पर किशनगंज पर तो पूरा का पूरा दावा था ही। तो मेरे चाचा थे संबंध में इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो पूर्णिया के, मैं समझता हूं अपने जमाने के बहुत ही लीडिंग लॉयर थे, कपिलेश्वर मिश्र। उनके नेतृत्व में कई लोगों ने संस्था बनाकर उस आयोग के समक्ष कई बातें रखी। मेरे पिता जो उन दिनों प्रोफेसर थे पूर्णिया कॉलेज में, डॉक्टर मदनीश्वर मिश्र, वो तो कई दिन किशनगंज जाते रहे और उन्होंने समझाने की कोशिश की वहाँ के लोगों की कि वो आयोग को बतावें कि उनके कुएं पर या उनके किसी मंदिर पर जो खुदी हुई चीज है वो मिथिलाक्षर है, वो ये अथवा कैथी है, मिथिलाक्षर है अथवा कैथी है, कहीं भी बंगला नहीं है।
और उसको लोग बंगला समझ करके बंगाल घोषित कर दे रहे हैं। ऐसा है नहीं। और वो जो बोलते थे वो सुनने में बंगला जैसा लगता था, पर वो बंगला होता नहीं था, कम होता था। वो होता था जिसको कहते हैं खोटा। अब उसके लिए दूसरा नाम चल पड़ा है, सुरजापुरी, किशनगंजिया और या और भी कोई नाम है। तो भाषा और लिपि का संरक्षण इस कारण कितना जरूरी है ये समझने की बात है। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि हेरिटेज बचाना क्यों जरूरी है। बहुत बधाई। मैं इसके लिए अपने शब्द नहीं, एक बहुत बड़े नामी रोम के वक्ता, दार्शनिक, राजनेता, एक्टिविस्ट, राजनेता भी और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी, चिंतक भी, अरस्तु से जिन्होंने पढ़ा था और आज तक कुछ लोग मानते हैं कि उनसे ज्यादा कोट, उनसे ज्यादा उद्धृत किसी दूसरे को नहीं किया गया होगा, वो थे सिसरो। सिसरो ने कहा कि जो व्यक्ति अपने हेरिटेज के विषय में नहीं जानता है, यानी उसके पूर्वजों ने क्या करके छोड़ा उसको नहीं जानता, उसको जानेंगे कैसे? इन्हीं को बचाएंगे तब ना। जिस बिल्डिंग्स की, जिस भाषा की, जिस लिपि की, जिस मूर्ति की चर्चा कर रहे हैं, उस सब को हम बचा पाएंगे तभी ना हम जानेंगे। तो जो व्यक्ति अपने हेरिटेज को नहीं जानता है वो शाश्वत शिशु रह जाएगा, वो सब दिन के लिए बच्चा ही रह जाएगा। अगर आप बचपन से निकलकर वयस्कता में आना चाहते हैं, और ये मैं वयस्कों को भी कहता हूँ, जो वयस्क अभी भी बचपन में हैं, वो अगर सचमुच में वयस्क होना चाहते हैं तो उन्हें इन हेरिटेज को जानना होगा। तो मैंने जैसा कहा, पाल साहब ने भी ये बातें कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। वो स्कूल के मेरे वरिष्ठ मित्र हैं। कोई एक बच्चा प्रश्न मुझसे शायद पूछना चाह रहा था मधुकांत झा के बारे में। हाँ जी, हैं? मधुकांत झा जी के बारे में चर्चा की। कौन है, क्या नाम है उनका जो पूछ रहे हैं? आरव नाम। हाँ। आरव। आप रहने वाले बीरपुर के हैं या नरपतगंज के, कहाँ के? एक मिनट, उसको अनम्यूट करना होगा। अच्छा, छोड़ दीजिए। मैं जानता हूँ मधुकांत झा को, वो सुन अगर रहे हैं तो सुन ले। मेरे साथ थे, हम लोग एक कमरे। जी आरव। सर मधुकांत झा मेरे दादाजी लगेंगे। अपने दादाजी हैं? यस सर। अच्छा। मधुकांत झा जी मेरे मित्र थे, हैं। हम लोग पटना कॉलेज में जब पढ़ते थे तो एक साथ कमरे में रहते थे, और वो मेरे बड़े मामा के साले भी हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, क्यों नहीं जानूंगा। हाँ, और मैं आऊंगा एक दिन उनसे मिलने। तो इन टिप्पणियों के बाद मैं समाप्त करना चाहूंगा शिव कुमार जी को फिर से बधाई देते हुए कि संरक्षण के बारे में बहुत सारी बातें कही। और हाँ, उनके भाषण से जो एक बात हमने ग्रहण करना चाहा वो ये कि लोगों में जानकारी, जागरूकता फैलाने के लिए हम, जब ये कोरोना वाला काल समाप्त हो जाए, और हम आशा करेंगे कि ये जल्दी समाप्त होगा, तो अररिया में, किशनगंज में, कटिहार में, सिकलीगढ़ में, बनमनखी में, अलग अलग जगहों पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें और उसमें जन सहभागिता बढ़ाने की कोशिश करें। जहां आमने सामने बातें होंगी तो लोग बैठेंगे, ज्यादा लोग जानेंगे, और उस अपने अपने क्षेत्र की बात सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। हम चाहेंगे कि हम उन्हें उनके घर में जाकर उनकी बात सुना सकें। एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा था। दूसरी बात कि शिव कुमार जी की सहायता से रमन जी कृपा कर ये, और आप तो स्वयं आर्कियोलॉजी के हैं, आर्कियोलॉजिकल जो लॉज हैं, जो कानून है, हेरिटेज विषयक जो कानून हैं, उन कानूनों का एक चार्ट बनाकर लगा दें कार्यालय में भी, और कोशिश करें कि लोगों में उसका प्रसार हो सके। तो ये दो काम तो हम तत्काल कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा
पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वो भी हेरिटेज बिल्डिंग इस अर्थ में है कि 100 साल से कहीं पुराना है और पिकाची से ज्यादा बड़ी भूमिका उस मकान की रही है। पूर्णिया के जो सबसे बड़े जमींदार हुआ करते थे, जिस जमींदारी से ही राजा पीसी लाल की जमींदारी बाद में निकली और पहले बनेली राज निकला, रानी इंद्रावती की जमींदारी, उनके पति राजा इंद्र नारायण राय की जमींदारी, उसके पहले राजा रामचंद्र नारायण जिसे हम लोग पूर्णिया राज के नाम से जानते हैं, उस पूर्णिया राज के विषय में कहा जाता है कि उसका मैनेजर बन के, उसका अपना बन के पामर नाम के एक व्यक्ति ने उसको समाप्त करने की कोशिश की, समाप्त कर दिया। इस पर एक लेख मैंने जो एक पुस्तक मिथिला पर संपादित की है, मिथिला रिच हेरिटेज प्राउड आइडेंटिटी, उसमें हेतुकर झा जी ने लिखी है। वो पामर, उसने कई अच्छे काम भी किए, वो जमींदार था, वो इंडिगो प्लांटर था और हेज नाम के परिवार से उसका संबंध हुआ और बाद में हेज ही मालिक बन गया पूर्णिया कॉलेज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसका। ये पूर्णिया कॉलेज के कब्जे में है, कब्जा जिसका है वो उसका है। अब तो वो प्राइवेट बिल्डिंग है। शिव कुमार जी शायद इस विषय में कुछ कह रहे थे कि हम उसमें कुछ बहुत कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम पूर्णिया कॉलेज से और पूर्णिया यूनिवर्सिटी से इतना अनुरोध तो कर ही सकते हैं इंटैक्ट की ओर से कि उस बिल्डिंग का जो स्वरूप है उसे बनाए रखा जाए और हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर उसको अगर घोषित कराया जा सकता है तो करा करके उसकी रक्षा के लिए जो सरकारी तंत्र है जिसके विषय में शिव कुमार जी बता रहे थे, तो उसके माध्यम से हम लोग अपने पूर्णिया चैप्टर ऑफ हेरिटेज के माध्यम से चेष्टा कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, एक एक गांव एक एक क्षेत्र में इतनी सारी चीजें छिपी हैं। और मैंने जब पूर्णिया के राजनीतिक इतिहास पर काम किया था तो मुझे लगा था कि पूर्णिया जिले पर भी काम करना असंभव है, पर मैं अब कह सकने की भी स्थिति में हूँ कि पूर्णिया जिले के किसी एक चप्पा पर, किसी एक क्षेत्र पर, छोटे से खंड पर काम किया जा सकता है और बड़ा। अब जैसे एक उदाहरण छोटा सा मैं दे के खत्म करता हूँ, याद आ जाती है बात तो लोभ संवरण नहीं कर पाता हूँ। 19वीं शताब्दी में पूर्णिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था नाथपुर, अररिया जिले में पड़ता है। अब कोई जानेगा भी नहीं कि नागपुर कभी शहर था। अब तो वो गांव भी बहुत छोटा सा बच गया क्योंकि कोसी ने एक रात में उस पूरे शहर को समाप्त कर दिया। और उसके बाद ही ये आरब जहाँ के हैं, नरपतगंज के हैं, तो नरपतगंज, गणपतगंज और कई गंज ऐसे ही मुर्शिदाबाद और बंगाल से आए उन क्या कहेंगे उद्यमी कहिए, एंटरप्रेन्योर्स कहिए, जो आए और राजस्व कृषक के रूप में, राजस्व कृषक भारी शब्द लगेगा पर ऐसे आप समझ लीजिए कि लगान वसूलने के लिए जमींदार कुछ लोगों को ठेका दे दिया करते थे। वो भी धीरे धीरे जमींदार की जगह जमींदार होने लगे। उन्हीं को कहते हैं रेवेन्यू फार्मर्स, राजस्व कृषक। राजस्व कृषक के रूप में आए, मालिक बनते चले गए, अपने नाम पर गांव बसा लिया। वो सारे गांव जो सुपौल और अररिया के बीच में पड़ते हैं और अरब के गांव के आसपास पड़ते हैं, सिर्फ उन गांवों को लेकर और नाथपुर शहर के नष्ट होने को लेकर कोई काम करना चाहे तो बड़ा काम किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से शिव कुमार जी को बधाई देता हूँ। मैं बधाई देता हूँ राजेश जी को, जो पूर्णिया इंटैक्ट चैप्टर के अध्यक्ष हैं और बहुत रुचि लेकर वो इसके कार्यक्रम करवाते रहते हैं और पूर्णिया के लोगों में पूर्णिया के विषय में जानकारी फैला रहे हैं। वो बहुत ही अधिक धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरा राजेश जी के विषय में एक बड़ा ही अच्छा इंप्रेशन है, पता नहीं कितने लोग सहमत होंगे, कि वो बड़ा नो नॉनसेंस किस्म के आदमी हैं। उन्हें मामूली और बिना मतलब के बात या अंधविश्वास वाली बात या इधर उधर की बात, उसमें बहुत वो ठीक पॉइंटेड बात में विश्वास करते हैं।
ऐसे आदमी से हम हमेशा अपेक्षा रख सकते हैं कि वो हमारी संस्था को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। तो इंटैक हमारा सही दिशा में जाएगा। और अब तो रमन जी उनकी सहायता के लिए हैं। रमन जी स्वयं इतिहास और आर्कियोलॉजी के विद्वान हैं, PhD किया हुआ है और काम कर भी रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि और मेहनत से हम लोग काम करें और भगवान से मनावें कि जल्दी से हम मुक्त हो जाएं इस कोरोना से, ताकि हम खुलकर लोगों के बीच जाकर बातें कर सकें। सब लोगों को, रमेश जी को मैंने देखा नहीं, वो शायद उन्होंने जुड़ नहीं पाए। रमेश जो है ऑनलाइन है, शायद सुन रहे होंगे। ऑनलाइन हैं, जो संरक्षक हैं इंटैक के और बड़े ही सुलझे हुए आदमी हैं। आप कितनी भी बड़ी समस्या लेके जाइए, वो उसका सीधा समाधान बता सकने में समर्थ रहते हैं। हाँ हो या ना हो, उससे मुझको बहस नहीं है, लेकिन वो समाधान सही बता पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्षीय भाषण समाप्त करता हूँ और मुझे क्षमा करेंगे जिन्हें धन्यवाद देना है, उन्हें तो और भी बहुत लोगों को धन्यवाद देना होगा। नहीं सर, आप हो ही, आप ही आगे बढ़ा लीजिए। बाकी हम ऑडियंस को धन्यवाद दे देते हैं। बाकी तो सर का जो है, सबको धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और अगर धन्यवाद देना चाहिए तो उसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? एक बार जो है सो हम सबको, जो लोग सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उनको अच्छा लगा ये कार्यक्रम तो हाँ, जो हैंड रेस वाला आइकन है उसको सब लोग हैंड रेस वाले आइकन, अगर उनको कार्यक्रम अच्छा लगा तो हैंड रेस का आइकन है इसमें ऊपर में। हाँ, सब लोगों ने हाथ उठाया है सर। सबको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और इस तरह के कार्यक्रम में जो है सो मतलब बच्चों का अंत तक जुड़ा रहना, ये जो है सो मतलब आपने कार्यक्रम को कितना इंटरेस्टिंग था ये सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। और फिर से एक बार वही ग्रुप में हमने चैट में लिंक डाल दिया था हेरिटेज ग्रुप का, जो जुड़ना चाहे उससे जुड़ सकते हैं। फिर हम लोग क्लब के माध्यम से कुछ काम करना चाहेंगे, जितनी जानकारी मिली है हम लोग कुछ काम कर सकते हैं उस पर। और ये जो आप हेरिटेज के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं जो हम लोगों को आज चर्चा में नहीं आई, तो फिर उसके लिए भी फॉर्म का लिंक डाल दिया था चैट। थैंक यू शिव कुमार मिश्रा सर, मतलब बहुत अच्छा। हमको तो मालूम ही था कि बहुत मजा आने वाला है और बच्चों के लिए जो है सो बहुत जो है सो ज्ञानप्रद रहेगा सेशन। थैंक यू वेरी मच सर। चेयरमैन सर, थैंक यू सर। अब सब लोगों को मालूम हो गया होगा। ठीक, तो खत्म करें रमन जी? जी सर। नाउ वी वुड लाइक टू वाइंड अप द discussion now. Thank you very much to everybody.